Satya, if you could come on the Yes, frame, sir, we are an please. co-producer. That's why we are sitting here. Yeah. If we sit in front of there, co-producer. That's why we are sitting here. So I'd like to introduce Madam Vinita, who is now present in this meeting. Parenting is an art, a science, and above all, a journey of the heart. It is a path filled with love, discovery, and countries, moments of reflection. In Identical Twins Born Apart, the ultimate parenting playbook written by Madam Vinita masterfully weaves wisdom, real life experiences, and actionable insights into a guide that every parent, new or seasoned, can hold close. What makes this book extraordinary is its ability to resonate deeply. It doesn't just instruct, it converses. It doesn't merely offer strategies, it transforms mindsets. It challenges age old parenting myths and encourages us to raise children not through control, but through connection, empathy, and empowerment. As a parenting coach and education consultant, man has witnessed firsthand the struggles and triumphs parents face daily. The questions in this book, the doubts, the fears, and the hopes are ones I hear from parents all the times. What makes this book truly powerful is that it doesn't just provide answers, it provides clarity. It reassures parents that they are enough, that the love and presence matter more than perfection, and that raising a child is as much about raising oneself. So, to every parent holding this, know that you are not alone, seen, Working properly. heard, and you're doing better than you think. Let this book be a guide, mirror, and the source of strength as we navigate the beautiful chaos of parenthood. So, the book is related to parenthood and is written by Madam Vinita. Thank you, ma'am. Thank you, Miss Satya. मैं अभी हाल ही में मैंने ये बुक लिखी है. इट विल बी सून अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट एज वेल. मैं एक फोनिक्स मास्टर ट्रेनर हूँ, पेरेंटिंग कोच और करियर स्ट्रैटेजिस्ट भी साथ ही में. 15 years हो गए हैं मुझे एजुकेशन फील्ड में, और मैं एक ही मंत्र से चलती हूँ, टीच द वे द चाइल्ड लर्न्स, नॉट द वे यू टीच. बच्चे जैसे सीखे उन्हें हम वैसे पढ़ाएं. हम जैसे पढ़ाएं जरूरी नहीं है कि बच्चे वैसे. तो हमेशा से 2007 में जब मैंने काम करना शुरू किया था, तब से लेके आज तक दिस हैज स्टेड विथ मी एंड दिस हैज हेल्प्ड मी इवॉल्व एज अ टीचर एज वेल. I will just give me a thumbs up if you can see my screen. I'm sharing my screen and then we will start. Give me a thumbs up if you can see my screen. Yes. Perfect. रॉबर्ट जॉन मिहान का ये एक कोटेशन है जो मेरे दिल की बहुत करीब है. एंड इट सेज, टीचिंग चिल्ड्रन इज एन अकम्प्लिशमेंट. बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है. गेटिंग चिल्ड्रन एक्साइटेड अबाउट लर्निंग इज एन अचीवमेंट. लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को हम एक एक्साइटमेंट लेवल पे ले आए जहां पे दे लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग, तो वो एक टीचर के लिए अचीवमेंट की बात होती है. आज हम फोनिक्स के बारे में जानेंगे एंड इन दिस वी विल ऑल्सो लर्न कि फोनिक्स को बहुत एक्साइटिंग तरीके से हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं. अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है या आप बता सकते हैं मुझे. आई विल पॉज. अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिएगा. लास्ट में हम एक Q&A सेक्शन भी रख रहे हैं. अगर कुछ भी डाउट And before I move on, I want one more confirmation कि मेरी आवाज सबको एकदम क्लियर आ रही है.
तो एक थम्स Yes, अप ma'am. शो कर दीजिए You are अगर audible. परफेक्ट, थैंक यू. Vapi teachers, I'm so sorry, I don't know your name, so I am addressing you as Vapi teachers. अगर आप लोग, मैं आप लोगों को देख सकती हूँ, अगर आप लोगों को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है तो एक थम्स अप का जेस्चर आई हाईली अप्रिशिएट. यस, थैंक यू सो मच एवरीवन. अब इस सेशन में जो की स्किल्स है, व्हाट वी विल लर्न इन दिस सेशन, ये हम जो सेशन कर रहे हैं हम ये क्यों कर रहे हैं. हम आज के सेशन में 3 मेन चीजों पे बात करेंगे. सबसे पहला फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, दूसरा लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड थर्ड इज द VARK एंड VAKT अप्रोच टू टीच फोनिक्स. एक तरीका है फोनिक्स को और एक्साइटिंग बनाने के लिए और इजी भी बनाने के लिए फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल. अब आई वुड वांट टू नो कि फोनिक्स के क्या बेनिफिट्स है. हम बहुत सालों से अभी फोनिक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है तो हालांकि बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट, लेकिन इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. दिस इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली, स्टार्टेड बाय सू लॉयड, उन्होंने ये शुरू किया था. जॉली फोनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को क्या लगता है कि फोनिक्स के क्या बेनिफिट्स है? आई वुड वांट समवन टू टेल व्हाट इट इज. व्हाट डू यू थिंक कि फोनिक्स से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें और बच्चों? तरुण जी, आपके ग्रुप से कोई कुछ कहना चाहेगा इसके लिए? Yeah, ma'am. फोनिक्स पढ़ाने के क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स है? Just give me 1 minute, ma'am. I have an issue with our network. No worries. Okay. So, moving on to the Vapi teachers, someone from the teachers group can come forward and share what you all feel are the benefits of phonics. Consonant vowel, consonant word properly, easily. आपको थोड़ा पास आना पड़ेगा. You will have to move a little forward and answer. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I want to say the benefit of phonics that the children will easily learn consonant vowel, 3-letter words easily. 3-letter Small word children. easily. Yes. Hmm. Okay. I will take that as an answer. There is more to it. और भी बहुत सारी चीजें हैं. Consonant, vowel, consonant definitely is one of them. Reading. So, Word spelling. Reading and spelling. you will have to move forward and then come and reply. Yeah, we can have one volunteer for our team and वो हमें बता सकते हैं सबके answers. Yes. Miss Satya, you will have to sit in the center of the screen, then you will be audible. Perfect. It teaches a relationship between sounds and letters. Yes. Help in decoding. Perfect. So if these two are there, then children will have the confidence to read and write, speak also. Yes. You're right, Miss Satya. तरुण जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? Yes, other teachers can add. Come forward. Megha. Actually, we have learned LSRW for the children, small children. Yes. So the children will listen. Yes. LSRW, listen, speak, Yes. read, and then write. Perfect. This we have learned from DLF. That we follow this LSRW. That means listening, speaking, reading, and writing. Correct. So ये एक तरीका है सीखने का. एंड कोई भी एक भाषा भी अगर हम सीखते हैं तो सबसे पहले लिसनिंग होता है. अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक बचपन में जाएं तो हमने सबसे पहले हमारे आसपास के लोगों को
बातें करते हुए सुना था। लिसन, जब हमने ये सुना तो सुन के बोलना सीखा, तो स्पीकिंग। उसके बाद कुछ रीड करना सीखा, कुछ पिक्चर्स देखते थे तो पिक्चर देख के बता रहे हैं कि ये एप्पल है, ये बैट है और ये विंडो है, तो दैट इज रीडिंग। अल्फाबेट्स और लेटर्स हमने सीखे। उसके बाद हमने राइटिंग सीखी थी। सो राइटिंग इज द लास्ट phase. So in phonics also we do the same. We listen, we speak, and we read, and then we write. मैं यहाँ पे there are over 50 benefits of learning phonics. मैं यहाँ पे सिर्फ 20 main benefits आपसे शेयर कर रही हूँ one by one. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होता है, वोकैबुलरी बढ़ती, जितना हम पढ़ेंगे उतने ज्यादा नए नए वर्ड्स हम सीखेंगे, स्पेलिंग्स इंप्रूव होते हैं, प्रोनाउंसिएशंस अच्छे होते हैं, और इन सारी चीजों से डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिसके कारण हमारी राइटिंग की एबिलिटी भी अच्छी होती है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और उभर के आती है, क्रिटिकल थिंकिंग, हम सोचना, कॉग्निशन, ब्रेन, उसे हम ज्यादा यूज करते हैं, मेमोरी बढ़ती है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी मेमोरी को सेट हो रहा है, जिससे हमारी मेमोरी बढ़ रही है। विद कांस्टेंट प्रैक्टिस रीडिंग फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाती है, और जो हमारी रीडिंग की स्पीड है डेफिनेटली वो भी अच्छी होती है। रीडिंग स्टैमिना भी बढ़ता है। अगर आपने देखा होगा कि हम ABCD से शुरू करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे हम किताबें पढ़ रहे हैं, और जो बहुत फास्ट पढ़ते हैं या जिन्हें बहुत शौक है ऑफ रीडिंग, एक दिन में 2 दिन में इतनी मोटी मोटी किताबें भी वो पढ़ लेते हैं। सो रीडिंग स्टैमिना इंक्रीज होता है। टेस्ट स्कोर्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। अगर हम एकेडमिक्स एस्पेक्ट की बात करेंगे तो अटेंशन इंप्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पे लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑडिटरी, विजुअल, किनेस्थेटिक, सारे सेंसेस हमारे इन्वॉल्व होते हैं। लिसनिंग स्किल बहुत इम्प्रूव होती है, क्रिएटिविटी डेफिनेटली एनहांसेस। कॉन्टेक्स्ट की जो बात हम करते थे उसके बारे में हमें अवेयरनेस ज्यादा होती है। ओरल लैंग्वेज स्किल्स, बात करना, कम्युनिकेशन, वो भी बहुत इम्प्रूव होता है। स्पोकन लैंग्वेज फ्लुएंसी आती है, और ओवरऑल लिटरेसी इम्प्रूव होती है इससे। तो ये कुछ 20 बेनिफिट्स ऑफ फोनिक्स मैंने आपसे शेयर किए हैं यहाँ पे। मूविंग ऑन, राइट एज टू स्टार्ट फोनिक्स। आपको क्या लगता है कि फोनिक्स स्टार्ट करने की राइट एज क्या होती है? तरुण जी, यस मैम। आपको क्या लगता है कौन सी एज से हमें फोनिक्स स्टार्ट करना चाहिए? मैम, आई थिंक द राइट एज टू स्टार्ट phonics is approx 3 years. 3 years, okay. Yes. Miss Satya, what is the opinion of your team ki phonics when should we start, at what age should we start phonics? By 2.5 years. By 2.5. 2.5 years, okay. So बहुत सारे लोगों को लगता है कि phonics हम 2.5 years से शुरू करें, 3 years से शुरू करें, 3.6 या 4 years से शुरू करें। बट एक्चुअल आंसर इज, जब बच्चा रेडी होता है तब हम फोनिक्स स्टार्ट करते हैं। स्कूल में देयर इज अ सेट करिकुलम, लेकिन जब बच्चे की रेडीनेस आती है, दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फोनिक्स, क्योंकि नॉट एवरी चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग एट द सेम एज। हर बच्चा एक समय पे नहीं बोलना शुरू करता। कोई बच्चे बहुत लेट बोलते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। सो the right stage to start phonics is the readiness of the child. जब बच्चा तैयार है तब हम उन्हें ये सिखाना शुरू करते हैं। phonics और phonetics, ये दोनों टर्म आप लोगों ने अगर सुने हैं तो thumbs up कीजिए प्लीज। राइट, और क्या आप लोगों को लगता है ये दोनों टर्म सेम है, इंटरचेंजेबली हम यूज कर रहे हैं, या दोनों का मतलब सेम ही होता है? सेम होता है। ओके, तरुण जी, आपकी टीम को भी लगता है? I also think that both terms are same. Both the terms are same. Okay. Miss Satya, you and your team feels the same?
Yes, ma'am. यस, ओके। एक्चुअली ये दो डिफरेंट टर्म्स है, लेकिन ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। तो आज हम इन दोनों, और ये दोनों टर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम उनको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। फोनिक्स जो होता है वो तरीका है, मेथड है रीडिंग करने का, और फोनेटिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है स्पीच साउंड की। अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ और जो आप मुझे बोल रहे हो, तो हम बात बात में कर रहे हैं, आवाजें आ रही है, राइट? मेरी आवाज है जो आपको सुनाई दे रही है। तो ये जो स्पीच साउंड्स है, बहुत सारे साउंड्स बन के मैंने शब्द बनाए, उन शब्दों से मैं सेंटेंस बना रही हूँ और मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो ये जो आवाज आ रही है, स्पीच साउंड, एक साइंटिफिक स्टडी है, उसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। और इस स्पीच को, स्पीच साउंड को रीडिंग में, रीडिंग इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना, उस मेथड को हम फोनिक्स कहते हैं। सो इस स्टडी को पढ़ने का जो मेथड है वो फोनिक्स है। आवाजों को पढ़ने के लिए एक मेथड की जरूरत है जिसे हम फोनिक्स कहते हैं। एम आई क्लियर यहाँ पे? इफ आई एम क्लियर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यस, थैंक यू। HP से जिसने लॉगिन किया है, प्लीज आप अपना नाम लिख लीजिए, तो it will become easy for me to address you. Please rename yourself. So, आज हमें ये पता चला है कि फोनिक्स और फोनेटिक्स दो अलग चीजें होती है, जिसे हम एक्चुअली सिमिलर समझ रहे थे या सेम समझ रहे थे। फोनिक्स क्या करता है? ये हमें बेसिक एबिलिटी देता है टू रीड एंड राइट। पहले हम रीड करना सीखते हैं और फिर उसे हम हमारी राइटिंग में लेकर आते हैं। अब इसके दो तरीके हैं। पहला बताती हूँ मैं आपको, VAKT मेथड। एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जो बहुत सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स ने मिलकर एक बनाया, जिसमें हम बात करते हैं 4 सेंसरी मोडालिटीज की जो हमें पढ़ने में हेल्प करती है। हम सब की एक लर्निंग स्टाइल होती है, ध्यान से सुनिएगा। कोई देख के सुनता है, कोई करके सीखता है, कोई दो चीजों से मिक्स लर्निंग एबिलिटी, उसको देखने को भी चाहिए और सुनने को भी चाहिए, तभी वो सीख पाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है जो घूम घूम के पढ़ रहा होता है, या बचपन में आप भी कभी कुछ लर्न कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ऐसे घूम के पढ़ रहे होंगे, म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ रहे होंगे, तो वो आपकी एक लर्निंग स्टाइल है। तो 4 मेजर लर्निंग स्टाइल होती है, उसमें से या 2 हर इंसान में होती है। तो हमने फोनिक्स में इसे इंटीग्रेट किया है VAKT मेथड को, जिसमें हम हमारे 4 सेंसेस को एक्टिवेट करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसी चीज को, अभी V से है विजुअल, मतलब जो हम देख रहे हैं, ऑडिटरी जो हम सुन रहे हैं, किनेस्थेटिक जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, टेक्टाइल इज द टच सेंस जो हम टच करके सीखते हैं। फिर आगे और इस चीज पे रिसर्च हुई और पढ़ाई हुई, फिर उन्होंने VAKT अप्रोच को VARK अप्रोच बना दिया। तो विजुअल और ऑडिटरी, आंख से देख के सीखना और सुन के सीखना। R में रीडिंग और राइटिंग उन्होंने सेम लेवल पे ले लिया, और K काइनेस्थेटिक और टैक्टाइल को एक साथ में उन्होंने डाल दिया। ठीक है, तो अभी जो अप्रोच यूज होते हैं वो है VARK अप्रोच, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग, किनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल। आज हम इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो अब हम आगे सीखते हैं। ये मैंने आपके सामने, जॉली फोनिक्स इज वेरी पॉपुलर, उनके ये 7 ग्रुप्स में उन्होंने 44 साउंड्स को डिवाइड किया है जो हमें रीड करने में हेल्प करते हैं। अभी आप सुनेंगे बहुत लोग इसे 42 साउंड्स भी कहते हैं और बहुत इन्हें 44 साउंड्स भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने किसी से सुना है 42 साउंड्स एंड 44 साउंड्स, प्लीज शो मी अ थम्स अप। नहीं, परफेक्ट। तो मैं 44 और 42 साउंड्स, क्योंकि हम फोनिक्स सीख रहे हैं तो जो सबसे बेसिक है ये हमें यहाँ से क्लियर करना चाहिए। तो 44 साउंड्स और 42 साउंड्स का क्या राज है? सी की साउंड होती है
के की साउंड भी होती है क, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम सी और के साथ में लिखते हैं, जैसे टक, और इसकी भी साउंड होती है क। तो अब बहुत सारे लोगों ने इसको एक साउंड मान ली है, वन साउंड। जब हम इसे एक साउंड की कैटेगरी में डाल देते हैं तो 42 साउंड्स हो जाते हैं, और किसी ने इन तीनों को अलग अलग लिया। जब इनको अलग अलग लिया तो हमारे पास टोटल 44 साउंड्स हो जाते हैं। तो अगर कभी आपसे कहा जाए कि जॉलीफोनिक्स के लेवल 1 पे, जिसमें ग्रुप 7 है, उसमें 42 साउंड्स है या 44 साउंड्स है, तो आप कंफ्यूज ना हो। दिस इज द रीजन 42 और 44 का कॉन्सेप्ट आया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी पेस ठीक है क्या? मैं जल्दी जा रही हूँ या दिस इज गुड? नो मैम, यू आर एक्यूरेट। थैंक यू। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। सो ग्रुप 1 में और एक चीज है, इसमें ABCD के सीक्वेंस में नहीं है, देयर इज अ स्पेशल सीक्वेंस हियर, SATIPN। अब ये सीक्वेंस स्पेशल क्यों है, आज हम ग्रुप 1 के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको लेके चलती हूँ इस। तो सबसे पहले जो साउंड है पहले ग्रुप की, वो है लेटर S। और S की साउंड क्या होती है, कौन बताएगा? ओके, वापी स्कूल से someone would want to answer this. What is the sound of the letter S? Hissing sound. The hissing sound, ठीक है, राइट। सो S को स भी कहा जाता है, लेकिन वो पूरा करेक्ट नहीं है। The sound is लंबी सी साउंड होती है। जब हम स बोलते हैं तो ये स्टॉप साउंड हो जाती है कि स बोला और खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली ये कंटिन्यूअस साउंड है जो हम जोर से बोलते हैं और लंबी खींच के बोलते हैं। दिस इज द करेक्ट साउंड। अब जब मैं बच्चों को ये साउंड दिखा रही हूँ तो मैं लेटर और स्मॉल लेटर हमेशा दोनों साथ में लिखती हूँ, एंड वी शुड ऑलवेज डू दैट। नहीं तो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये है तो ये क्या है। जो बहुत सारे लेटर सिमिलर है, अभी S और S तो कैपिटल और स्मॉल सारे ही सिमिलर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लेटर्स अगर हम देखेंगे तो वो डिफरेंट होते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन्हें कैसे लिखें, कौन सा लेटर है और कौन सी साउंड है। So whenever we are introducing phonics to children, we should always write capital letter and small letter together. तो इससे ये जो बेसिक कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है हमारा। उसके बाद हम बच्चे को साउंड बताते हैं। S की साउंड होती है कम से कम भी 3 बार हम ये साउंड बोलेंगे, तब बच्चों को समझ आएगा। उसके बाद बच्चों को ये साउंड समझ आए या नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, हम एक स्टोरी सुनेंगे। एंड इन दिस स्टोरी व्हेनेवर यू हियर द साउंड, आपको एक छोटा सा एक्शन करना है, ऐसा एयर राइटिंग, हवा में S बनाना है। जितनी बार भी आपको S सुनाई देगा, ठीक है? रेडी? इफ यू रेडी, शो मी अ थम्स अप। यस मैम। It is a sunny day. सनी में आता है तो हमें एयर राइटिंग में S करना है, ठीक है? सो अभी ये लिसनिंग हमारा अलर्ट होना पड़ेगा, हमें ऑडिटरी पे है हम अभी, ठीक है? तो वी स्टार्टिंग अगेन। चलो वार्म अप था, अभी वी आर स्टार्टिंग अगेन। It is a sunny day. Sunny day. The boy takes his dog for a walk. The boy throws a stick and the dog runs after it. The dog sniffs around in the grass and starts barking. A large spotty snake is sitting up and hissing.
boy grabs the dog and the snake slowly slithers away. तो हमने इतनी बारी इस स्टोरी में साउंड सुना है, तो इससे बच्चे को ये क्लियर हो जाता है कि साउंड कैसी सुनाई देती है इन द लेटर्स, इन द वर्ड्स. ठीक है, इसको और रीएनफोर्स करने के लिए यहाँ पे बच्चों ने ऑडिटरी लर्निंग यहाँ पर बहुत ज्यादा हुई है. विजुअल के तौर पे उनको ये फोटो जरूर दिख रही है कि विजुअली आप ये फोटो देख रहे हैं लार्ज स्पॉटी स्नेक की. ठीक है, अब इसको और ज्यादा रीएनफोर्स करने के लिए हम एक गाना सुनेंगे विच इज ऑल्सो म्यूजिकल प्लस काइनेस्थेटिक. हमारे बॉडी मूवमेंट्स होंगे इस सॉन्ग में. सो बच्चे ने ऑडिटरी सुना, विजुअल की इमेज देखी है, अभी काइनेस्थेटिक बॉडी मूवमेंट से भी वो इसको और लर्न करेगा, तो वो रीएनफोर्स होती है उसकी रीडिंग. I'm playing the song. The snake is in the grass. The snake is in the grass. The snake is in the grass. तो ये बॉडी मूवमेंट से उनको एक्शन करना है और म्यूजिक चल रही है तो बॉडी विल हैव सम रिदम आल्सो. एंड दिस सॉन्ग वी डेफिनेटली प्ले ट्वाइस. उसके बाद हम बच्चों से पूछे जरूर, डू दे वांट टू लिसन टू द सॉन्ग अगेन. So let us play 3 times or 4 times also if need be. तो यहाँ पे बच्चे की बॉडी मूवमेंट्स, जो बच्चा थोड़ा, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बॉडी मूवमेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं, वो एक ही जगह पे बैठ के सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा तो हिल ही लेंगे वो. तो उनकी मेमोरी में ये जरूर बिल्ड हो गया पिक्चर, जो उसको विजुअल इमेज दिखी. विजुअल इज ऑल्सो माई एक्सप्रेशंस, जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ वो भी विजुअल है, राइट. वो देख के ही मूवमेंट करना सीख रहा है. ऑडिटरी जो वो सुन रहा है एंड मूवमेंट द काइनेस्थेटिक. ठीक है, अब पिक्चर डिक्शनरी की बात करते हैं. यहाँ पे बच्चा देखेगा, सुनेगा, बोलेगा. व्हाट पिक्चर इज दिस? ये क्या लग रहा है आपको, क्या चीज की फोटो है? Sand. Right. Yes, sand. So when I say sand, do you hear? क्या आपको सुनाई दिया? ने sand बोला. Sand. So बोलेंगे हम sand, sand. ठीक है, फिर what is this? Socks. Socks. Now I want you all to look around and tell me one word that starts with S which is in your surrounding. आपके आसपास में, can be more than one also. देख के बताइए. Stand. Stand. अरुण जी, आपके आसपास में है कोई वर्ड जो S से स्टार्ट होता है? Sunlight. Sunlight. Very good. गुड ऑब्जर्वेशन. सो स्टार्ट हो रहे, तो हम हमारे आसपास के बच्चों को भी ये पूछेंगे. एंड व्हेन वी नो, क्लास में जाने से पहले हमें पता होता है कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो हम इंटेंशनली कुछ चीजें ऐसे आसपास में रख देंगे जिनमें एस की साउंड होती है. देन इट becomes easy for children also to explore more. And this is how, so when we say socks, so everybody in school wears socks. Pre-primary school में sometimes children don't, but mostly they do. Then the number 6 also has a sound. अब आप यहाँ पे देखेंगे इन सारे वर्ड्स में सबसे पहले आता है, क्योंकि जब हम बच्चों को साउंड सिखा रहे हैं तो हम सबसे इजी होता है पहली साउंड कौन सी सुनाई दे रही है वो सिखाना. नेक्स्ट इजी लेवल इज लास्ट साउंड. अगर मैंने बोला सॉक्स, सॉक्स, तो लास्ट में क्या सुनाई दिया? सुनाई दिया. बीच में होता है या बीच में कोई भी और साउंड होती है, मिडिल साउंड सिखाना सबसे डिफिकल्ट होता है बच्चों. तो इसलिए हम सबसे पहले बिगिनिंग साउंड सिखाते हैं. जब वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, देन वी मूव ऑन टू द लास्ट साउंड एंड देन वी मूव ऑन टू द मिडिल साउंड. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सी नहीं पता हो सकता है. तो ये सिर्फ पिक्चर डिक्शनरी साउंड सिखाने के लिए नहीं है, बच्चों की वोकैबुलरी भी एनहांस करने के लिए है.
इसे बच्चे देख के बोलते हैं स्माइली. दे आर नॉट रॉन्ग व्हेन दे से दिस, बट देन वी कैन आस्क देम फर्दर. ये वोकैबुलरी कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है. So then we can ask them, yes, you are right, it is a smiley. But what smiley it is? It is a sad smiley, or it is a happy smiley, or an angry smiley? What is a sad smile? If a child says sad, then we can again ask, so when you say sad, what is the first sound that you hear? So जब हम इतने सारे पिक्चर्स, स्टोरी और सॉन्ग सुनेंगे और हम बच्चों को बार बार एक ही चीज पूछते रहते हैं, तो वो उनमें पूरा बिल्ड अप हो जाता है. एंड वी आर यूजिंग द 4 मोडालिटीज फॉर लर्निंग सेंसरी स्टाइल. तो बच्चा एक तो पक्का ही पकड़ लेगा और उसमें से वो सीख पाएगा. ठीक है. और यहाँ पे हम वोकैबुलरी जो एनहांस कर रहे हैं बच्चों की, दैट इज ऑल्सो नेक्स्ट लेवल. मूविंग अहेड, अब जब मैं बात करती हूँ, फर्स्ट साउंड थी एस जिसकी हमने बात की, एस. उसके बाद जो सेकंड साउंड है वो है ए, और ए की साउंड होती है आ. व्हेन वी से आ, आवर माउथ ओपन्स वाइड और हमारी जॉ ड्रॉप होती है. एकदम इजी तरीका उसे समझने का. अपना हाथ नीचे रखिए अपने जॉ के एंड ट्राई एंड से so your jaw will touch, your chin will touch your hand. मतलब jaw drop हुआ. For a phonics teacher सबसे बड़ा होता है inhibitions को shed करना, क्योंकि बहुत exaggerate करके facial expressions को हमें पढ़ाना पड़ता है and it plays a very important role. अभी मैं क्यों स्पेसिफिकली मैंने बोला के लिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन ए के लिए मैंने बोला, उसकी रीजन है. साउंड और साउंड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो वो ई की साउंड होती है ए, ए, और ए की साउंड होती है आ. तो जब मैं आ बोलती हूँ, माई माउथ ओपन्स वाइड एंड माई जॉ ड्रॉप्स. आ. जब मैं ई की साउंड बोलती हूँ, so I'm basically smiling and stretching my lips towards my ears. और ये साउंड भी धीरे आती है. ए, ए, ए. तो जब ये बच्चे कंफ्यूज, ये माउथ मूवमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अपने क्लास में हमेशा एक बड़ा मिरर रखें so that the child knows the movements actually. उनको पता रहेगी तो वो आ को ए और ए को आ नहीं बोलेगा. I will show you this in an example कि इतना स्पेसिफिकली मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये चीज. पेन और पैन की अगर हम बात करें, तो बहुत बार होता है कि बच्चे पेन को भी पेन बोल रहे हैं या पेन को पैन बोल देते हैं. तो जब हम बच्चों को ये बता देंगे कि पेन, व्हेन आई से पेन, पेन, तो मेरा माउथ मूवमेंट ऐसा है. एंड व्हेन आई से पैन, पैन, मेरा माउथ मूवमेंट बड़ा हो रहा है, जिससे बच्चों को ये कंफ्यूजन नहीं होता है. बेड एंड बैड इज अनदर वर्ड जहां पे कंफ्यूजन होता है. men and man. आप मुझे और एक वर्ड बता सकते हैं जिसमें और ये ऐसा सिमिलर होता है? ट्राई, गिव मी ऐसा सेट ऑफ वर्ड. Mat and met. Mat and met. Fantastic. Met and mat. ठीक है. तो ये वर्ड्स इस तरह से. Set and set. Set. Sat. Sat. Great. I love your participation, everyone. So, ये जो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है वो क्लियर हो जाता है. और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वी आर ऑल्सो माइंडफुल ऑफ आवर माउथ मूवमेंट. और हम हमेशा कहते हैं ना बच्चों को,
इधर देखो, लुक एट मी। तो अब जब हम फोनिक्स पढ़ाते हैं तो दे शुड बी मोस्टली लुकिंग एट योर फेस एंड योर हैंड, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं। सो हेन, हैंड, बेड, बैड, men, man, met, mad, set। तो अब फिर समझ में आ जाएगा कि कभी E लिखना है और कब A लिखना होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? No, ma'am, all clear. It's clear. So we will move ahead. So I was here. So first sound is S, the second is A, and the third is T. T की साउंड होती है ट भी बोला जाता है। अभी मैं बताती हूँ कि हम ट क्यों बोलेंगे और हम क्यों नहीं बोलेंगे। अगर वन, ये चीज हमें समझनी है कि फोनिक्स वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उनके प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन हमसे डिफरेंट होते हैं, उनका जो एक्सेंट होता है वो भी हमसे डिफरेंट होता है। तो वो बोलेंगे टैप, या हम हमारी आम भाषा में टैप बोलते हैं या हम टैप बोलते हैं? हम टैप बोलते हैं, राइट। तो हम बच्चों को ट सिखाएंगे, क्योंकि हम टाइगर, टाई, टेडी नहीं बोलते हैं। तो और हम टाइगर, टेडी, टैप, टिन, टॉप कहते हैं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम ट सुन, लेकिन अगर हमने उनको सिखाई है उसी एक्सेंट में, तो वी शुड ऑल्सो मेक श्योर कि हम भी ऐसे ही बोले, टाइगर, देयर इज अ टाइगर इन द जू। तो हमें भी उसी एक्सेंट में बात करना चाहिए। एक बहुत ही आम गलती हमसे ये होती है कि हम एग्जैक्टली जो फॉरेन एक्सेंट है हम उसे पिक करते हैं साउंड्स के लिए और हम बच्चों को वही पढ़ाते हैं, लेकिन हम खुद रोजमर्रे की जिंदगी में वैसे बात नहीं कर रहे होते हैं। So this causes confusion. आपको दोनों पता होना चाहिए। The phonic sound originally is जो वॉइस ऐसे आवाज विस्पर जैसी आती है, लेकिन जो हम इंडिया में हिंदी में जो हम बात करते हैं और जैसे हम बात करते हैं उसमें हम ट बोलते हैं। So teach ट and you can see the convenience. अब जब ये बच्चे ने 3 साउंड सीखी है तो इन 3 साउंड से वो 2 वर्ड्स बना पा रहा है। यहीं पे मैं ABCD वाले सीक्वेंस में जाऊंगी। तो Z तक पहुंचते पहुंचते आप मुझे बताइए बच्चे कितने वर्ड सीख पाएंगे? अगर मैं ये मैंने पूरी ABCD सीक्वेंस में लिख दिया। लेट अस ट्राई एंड मेक वर्ड्स विद इट। पहले 5 अक्षर लेते हैं ABCD, कितने वर्ड्स बन रहे हैं उससे? लेट अस ट्राई। ABCD से हम कितने वर्ड्स बना पा रहे हैं? दो वर्ड मुझे दिख रहे हैं, BE बेड और BAD बैड। और अगर मैं थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मैं CAD कैड की बात कर सकती हूँ। ठीक है, राइट। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ FGHIJ। कितने वर्ड्स बनेंगे इससे? सिर्फ इन्हीं लेटर्स को अगर मैं लूं तो हम कितने वर्ड्स बना पाएंगे? FIG फिग, FIG फिग, JIG मैम हाई, HIGH, HIGH हाई। ठीक है, ठीक है, हमने 3 वर्ड्स बनाए। अब क्यों बता रही हूँ? 6
पहले के 5 फिर आगे के 5, 10 लेटर्स हमने लिए और हम मुश्किल से 6 या 7 वर्ड्स बना पाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब ये पैटर्न फॉलो किया है SHIPN, तो हम यहाँ पे 25 से ज्यादा वर्ड्स बना पाते हैं। 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स और 5 लेटर वर्ड्स भी। हम सिर्फ CBC तक रिस्ट्रेन्ड नहीं हुए हैं या रेस्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं। तो अभी ये देखते हैं, ट तक हमने सीखा तो हमने एट और सैट 2 वर्ड्स बनाए। जब हमने ई सीखा तो इट, सिट, 4 लेटर्स से 4 मीनिंगफुल वर्ड्स बने। अब जैसे कि हमने पी की साउंड सीखी, पी की साउंड हम नॉर्मली कहते हैं प, लेकिन फोनिक्स के उसमें जाऊं मैं एक्सेंट में, तो वो होती है हवा से, हवा निकल रही है। और जब मैं प बोलती हूँ मेरी लिप्स जोर से दबती है और फिर मेरी आवाज निकलती है प। सेम कॉन्सेप्ट है। हम पैरेट पेपर और पेन नहीं कहते हैं, हम पैरेट पेपर और पेन कहते हैं। तो हम प सिखाएंगे। अब जब प सीखते हैं तो हम टैप, पैट, पिप, पिट, टिप, सिप, 6 और नए वर्ड सीखते हैं। तो मतलब हमने 5 लेटर्स में हम 10 वर्ड्स ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया एन। एन की साउंड, व्हाट इज द साउंड ऑफ एन? ये नेजल साउंड होती है और ये लंबी कंटिन्यूअस साउंड होती है। जैसे होती है वैसे एन की साउंड होती है। और सबसे अच्छा तरीका होता है इसे सिखाने का, टिप ऑफ द टंग should be behind your upper teeth और साउंड आएगी यहाँ nasal. And when you place your fingers here, you feel a little vibration. Let us do this together. तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन फील होती है। एंड मेक योर चिल्ड्रन ऑल्सो फील दैट वाइब्रेशन। एंड इट इज नॉट न, ये न नहीं है, ठीक है। अब जब हमने सीखा तो हमने नो वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं अभी तक। तो हमने और 9 नए वर्ड्स सीख लिए। अब ये सीखने के बाद में मैं बच्चों को ब्लेंड्स भी सिखाती हूँ। कैसे सीखते हैं हम ब्लेंड्स? S और P मिलके क्या बनते हैं? हिंदी में याद है, आधे स्वर होते हैं हमारे, स्वर। तो ये हमारा है नहीं है, तो ये अभी मैं इससे और कितने वर्ड्स बना पाती हूँ देखिए। स्पैन, स्पिन, ठीक है। पैरो, वर्ड्स नहीं है ना, इन्हीं 6 लेटर से हमें वर्ड्स बनाने हैं और रिपीट भी करना है लेटर। हाँ, अब मैं स्पैन। अब स्नैप के लिए वेरी वेल सेड। स्नैप के लिए हमें एक और आधा स्वर सीखना पड़ेगा, वो है स्न। जैसे हम स्नेहा बोलते हैं या हम स्नेह बोलते हैं तो आधा स और ह लिखते हैं, ये एग्जैक्टली आधा न लिखते हैं, ये एग्जैक्टली वही है। तो स्न, स्नैप, स्न, स्निप। अब एक और another word, spit. Spit, yes. Spit, S-P-I-T. S-P-I-T, spit सीख रहे हैं हम। P-A-N-T, pant सीख रहे हैं हम। Ant भी सीख रहे हैं, yes. Nap, N-A-P, nap. हाँ, nap is in the list. Tip is the tip. Tip. Tip is in the list. Tip है। Okay. ठीक है, तो ये इतने वर्ड्स हुए। अब इन 6 साउंड से हम 5 लेटर वर्ड भी सीख रहे हैं। Pin is not there, no? Pin. So
We are learning satin. Satin is a 5-letter word. That also we are learning by just learning the first 6 sounds. So at this stage, when we start with the children, we can start teaching them 2-letter words, 3-letter words, 4-letter words, 5-letter words also. अब यहाँ पे एक वर्ड और हम सीखते हैं, बट वो थोड़ा रिपीट होता है उसमें एक साउंड. I will STINT. We can make this word, but इसमें T 2 बार रिपीट हो रही है. ठीक है, कर भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन how your child is learning. आपके बच्चे कैसे सीख रहे हैं, based on that आप सिखा भी सकते हो. So why I say yes? Any question? Stain. STAIN बनता है, but phonetically हम ये अभी नहीं सिखा सकते हैं because नहीं. Let me write this STAI. बहुत बन रहा है, लेकिन let us break this phonetically. हर एक साउंड के साथ ब्रेक करते हैं. तो मैं ये कैसे बोलूंगी? स्टर ए इन हो जाएगा. 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ओके, जब ए और आई साथ में आते हैं तो उसकी साउंड ए होती है, और स्टेन में हमें ए सुनाई देता है. तो ये वर्ड हम यहाँ नहीं सिखा सकते. It's the correct word, but we cannot teach this word at this stage. Okay? So here we've got these many words only after learning 6 sounds. I personally prefer this method क्योंकि इससे बच्चा रीडिंग बहुत जल्दी सीखता है. नॉर्मली हम स्कूल्स में सिखाते हैं CBC वर्ड, जिसकी टीचर ने पहले जिक्र किया था, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट. अब एक और तरीका है, उसमें हम जो 3-letter वर्ड ही सिखा पाएंगे. 4-letter वर्ड कब सीखेगा बच्चा? 5-letter वर्ड्स कब सीखेगा? अब इसमें एक और पैटर्न फॉलो होता है, जैसे मैंने बच्चे को सिखा दिया at. Now after teaching at, I keep adding words to it, especially those which rhyme. Mat, please give me more words. ठीक है, अभी जब मैं इन वर्ड्स की बात करूं, most school practices this. I am not saying it is wrong. My personal opinion is इससे बच्चा रीडिंग बहुत लेट सीखता है, and the reading is also restricted. And one major reason why I do not advocate for this method is इससे बच्चे reverse reading सीखते हैं. When I say reverse reading, I mean बच्चा उल्टा रीड करना सीखते हैं. कभी अगर आपने नोटिस किया होगा, जब हम एट बोल रहे हैं तो बच्चे को पहले एट 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 एट, उसके तो बच्चा पहले एट पढ़ रहा है, फिर वो आगे लगाएगा. We read from left to right. But when we follow this family method, we are reading practically from right to left. ये रिवर्स हो रही है. तो आप बहुत बार देखोगे बच्चे है ना, पहले एट बोल देंगे या टैम बोल देंगे, टैस बोल देंगे, टैर बोलेंगे. they reverse reading करते हैं. So this is actually the crucial reason why I do not prefer this method. It is popularly used across the globe. ये हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम स्कूल में ये मेथड यूज कर रहे हैं या नहीं. मोस्टली फोनिक्स बुक में आप यही मेथड देखोगे. They start with CBC, which is the correct thing. CBC से स्टार्ट करें, but not the family. उससे हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं रीडिंग बच्चे. ठीक है? Any question here so far? No, ma'am. No? Okay. Moving on. ये वर्ड बिल्डिंग हम कैसे सिखाते हैं बच्चों? हर एक साउंड को ब्रेक करना. जो मैंने ये डॉट्स बनाए हैं ब्लू कलर के, उसे एक टेक्निक होती है डॉट्स एंड डैशेस. तो हम डॉट लगाते हैं और हर उस डॉट पे बच्चा फिंगर प्रेस करेगा अपनी.
मैंने दोनों साउंड बोली थी कि whichever you prefer. At, 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 sat. तो हर एक साउंड को जब वो प्रेस करता है तो एवरी टाइम प्रेसेस तो सिग्नल ब्रेन में जा रहा है, मसल मेमोरी में आ रहा है और उससे सिग्नल ब्रेन में जा रहा है जिससे उसको रजिस्टर होता है। जो साउंड वो बोल रहा है वो उसको डायरेक्ट सुनाई भी दे रही है। तो सारे सेंसेस हमारे एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे, जिससे लर्निंग रिटेंशन और लर्निंग कैपेसिटी इनहैंस होती है। अब हम बात करेंगे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होता है जो हमारी एबिलिटी होती है टू हियर, आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट द वर्ड। जो भी मैं बोल रही हूँ आप सुन पा रहे हो, सुन के आप उसको प्रोसेस करके समझ भी रहे हो, राइट? तो ये आपकी एबिलिटी है जो आप ये कर पा रहे हैं। अब इसको हम मैनिपुलेट कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला कैप, तो बच्चे ने सुन लिया क ऐप कैप। अब मुझे इसे मैनिपुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी? मैंने बोला अगर मैं ये क हटा दूं और मैं ट लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? टैप। अब मैं ये टैप में से ए हटा दूं और उसे मैं ओ बना दूं तो ये क्या बन जाएगा? तो इस तरह से हम वर्ड्स साउंड्स को मैनिपुलेट करते हैं और बच्चों को ये जो रिदम में बच्चे सीखते हैं ना, कैट, बैट, फैट, मैट, हैट, ये राइमिंग वर्ड में बच्चे गेस भी करने लगते हैं। लेकिन जब हम ऐसे मैनिपुलेट करके बच्चों को साउंड सिखाते हैं और इस प्रैक्टिस में लाते हैं तो बच्चों का गेस वर्क बहुत कम हो जाता है एंड दे एक्चुअली गेट टू नो द फर्स्ट साउंड, द मिडिल साउंड एंड द लास्ट साउंड जो हम चेंज कर रहे हैं बार बार। तो इससे वो कॉन्सेप्ट भी फर्दर एनहांस होता है। अब मुझे बताइए, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कैन वी डू इन द डार्क? अंधेरे में कर सकते हैं हम ये? यस मैम। क्यों, कैसे कर सकते हैं अंधेरे में? Because there is no way to write any word. है, ये तो सुनने की एबिलिटी है हमारी। तो अगर पूरा अंधेरा भी कर दूं तो मैं जो भी बोल रही हूँ वो सबको सुनाई देगा, राइट? सो वी कैन डू फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इन डार्क। अभी एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है बट जानना जरूरी है। व्हाट इज फोनेम्स? जो भी शब्द हम बोलते हैं उस शब्द का जो सबसे छोटा यूनिट है, जो सबसे छोटा पार्ट है, उसको हम फोनीम बोलते हैं। उस साउंड को, फोन में हम क्या करते हैं, आवाज सुनते हैं ना, फोन इज साउंड, ठीक है? तो उससे हमें याद रहेगा फोनेम इज साउंड। साउंड ऑफ व्हाट? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। जो वर्ड में सबसे छोटी एक साउंड है दैट इज फोनेम। और कितनी ऐसी छोटी छोटी साउंड्स बन के वो वर्ड बना है। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, उसके पहले मैं एक वार्म अप कर देती हूँ। तो अगर मैं बात करूं सन की, तो सन में कितने फोनेम हुए? 3 फोनेम, ठीक है? अब मुझे बताएंगे हाउ मेनी फोनेम्स आर देयर इन रैन? रैन में कितने फोनेम्स है? 3, करेक्ट। 8 में कितने हैं? 2. 2? Yes, 2. GHT stop. 8, 2. 8, 2, 5 लेटर्स है। साउंड कितनी आई 5 लेटर्स की? सिर्फ 2 आई। 8, ठीक है? अगर हम इसे हिंदी में लिखने जाए तो हम कैसे लिखेंगे? 8, एक ही मात्रा और ट, 8, तो 2 ही हुए ना? चलो नेक्स्ट। There are also 2. 2, rain, rain, 2.
Stretch. आप लोग थ्री साउंड। ये 4 लेटर्स है, लेकिन फोनेम कितने हैं? सबसे छोटी छोटी साउंड्स कितनी है? 3। बहुत बड़ा वर्ड है, ध्यान से स्ट्रेच करके सुनिए, टेक योर टाइम। Straight. Straight. How many sounds? 4, ma'am. 3 तो नहीं है, ये तो पक्की बात है। 4 are there. 4. चलो 4 भी नहीं है, 3 और 4 दोनों ही नहीं है। Let us brainstorm a little. Straight. Extra. Two है। आर का अलग स्टार इट। तरुण जी पूछिए आपकी टीम से, कितने हैं बताइए। Straight. They Miss are saying Satya, that what is your team there saying? are 5. 5. Okay. Tarunji's team is saying 5. Miss Satya, your team is saying? Five or something. 5. 5. Okay, let us break this. When we say tr, तो हमें str और r तीनों सुनाई दे रहा है. We can hear all 3. Str, then I, लेकिन G और H तो silent है. Then we have t. So how many? 4, 2, 3, 4, 5. 4, 5. There are 5 phonemes in the word straight, which has 5 sounds. 5. 8 letters. ये 8 letters का word है, लेकिन sound सिर्फ 5 है. ठीक है? अभी phoneme समझ में आ रहा है? What is phoneme? Yes. Yes, ma'am. We have one more word. Ostrich. Let us try this. Ostrich. Three. Okay. You have 10 more seconds. You can keep guessing. 3 is not the right answer. CH का sound है. 6. I का sound E और CH एक sound. 6 पे CH एक sound. There are 6 sounds. Ostrich. साउंड लास्ट में एक हो गई, 2 लेटर्स मिलके ऑस्ट्रिच. OSTRI अलग अलग साउंड. So there are 6 sounds in this word which has 8 letters. So when we do this with the children, this is how they learn actually. So spelling errors के chances बहुत कम हो जाते हैं, and then they start listening to the sound which they hear, and that's how they write that sound. One last word we are taking, chopstick. Seven. Yes, 7 is the correct answer. So ch comes together, then we have o. So comes
C और K, when they are together, जब C और K साथ में होते हैं तो वो एक ही साउंड निकालते हैं क. There are 7 sounds here. Very well done. Okay, so this is phoneme. अब phoneme की जैसा ही और टर्म होता है ग्राफीम. ग्राफीम ग्राफीम हमें हेल्प करता है टू राइट द फोनेम. ग्राफीम हमें हेल्प करेगा फोनेम जो साउंड है उसको लिखने के लिए. लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे. दैट इज वेयर फोनिक्स कम्स इनटू रोल. यहाँ पे फोनिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक एग्जाम्पल मैंने जो अभी लिया है वो है द साउंड क. मैं हिंदी में लिख रही हूँ क. सी की साउंड भी क होती है, एज इन कैट, कॉट, कप. के की साउंड भी क होती है, किट, केट. सी के सैक, डेक, पिक, सॉ, डक. इसकी भी साउंड क हो रही है. क्यू यू की साउंड भी बहुत जगह क होती है. एंटी, कुरान में भी क, कतर में भी क. कीश, ये डिश है, कीश, कीश में भी क. तो सी एच जिसको अभी हमने द लास्ट स्लाइड हमने साउंड पढ़ा था, यहाँ पे वो क हो जाती है. जैसे क्रिसमस और स्टमक के लास्ट में हमें क सुनाई देता है, क. ठीक है. अब इन सारी चीजों को जब हम एक ही साउंड को इतनी तरह से लिख रहे हैं तो ये हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? थ्रू फोनिक्स एंड द रूल्स. बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है एंड दे नो एग्जैक्टली वेयर टू राइट व्हिच साउंड. Any question here? Any doubt? Any question here? No, No? ma'am. No, ma'am. We'll move forward. Yes, is calling us. हमने पहले एक बात की थी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की, जहां हमने बात की थी मैन्युपुलेशन की. ठीक है, मैं टेक्निकल टर्म में नहीं जाऊंगी बट सिर्फ एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. यस, फोनेम जो साउंड हमें वर्ड में सुनाई देती है. तो अगर मैंने बच्चे से पूछा व्हाट इज द फर्स्ट साउंड यू हियर इन बग, बच्चा बोलेगा ब. फिर मैंने बच्चे को वर्ड दिया कैट. मैंने पूछा व्हाट इज द फर्स्ट साउंड यू हियर इन कैट, ही इज सेइंग क. तो मैं पूछूंगी व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द साउंड दैट यू हियर, एंड पार्ट क्या है, तो वो सीधा बोल देगा एट. नाउ बच्चे ने क और एट साथ में पढ़ा. ये जो फैमिली वाली बात है, जब हम फैमिली वर्ड पढ़ते हैं तो वो एक साथ ऐसा पढ़ेगा. इफ द चाइल्ड इज नॉट इनटू रिवर्स रीडिंग, देन द चाइल्ड इज रीडिंग क एट कैट. ठीक है, तो हमने इसको सेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया. मूविंग ऑन, इसी चीज को अब हम आइसोलेट करेंगे. पहले हमने तोड़ा, अब हम इसको अलग करेंगे. मैंने पूछा the word is hat, so the beginning sound is h, and then I teach the child to blend. blend करना सबसे अच्छा तरीका होता है रीडिंग इंस्टिल करने के लिए. और ब्लेंडिंग में भी सक्सेसिव ब्लेंडिंग. सक्सेसिव ब्लेंडिंग. नाउ व्हाट इज सक्सेसिव ब्लेंडिंग? एक के बाद एक वर्ड इन द सक्सेशन. जैसे एक ग बिग तो पढ़ेगा बच्चा, बट हाउ बाय द टाइम जब when they especially start reading, by the time the child reaches g, he might forget p. तो वो बोलेगा egg, and it happens many a times. It happens and the child skips the first sound. So how to not do that? So what do we do in this is we say p, pig, pig, pig. तो इसे हम सक्सेसिव ब्लेंडिंग बोलते हैं. आई टेक अनदर एग्जांपल. अगर बड़े वर्ड है, सपोज अगर मैंने
ये वर्ड लिया hand. And if the child is saying her and most likely the child might forget the first sound which he has said. So how do we do this in a successive blending? Her and स्ट्रेच किया हमने हर एक साउंड को, और पहली वाली साउंड का लूप हमने छोड़ा नहीं है. Hand, hand. If I make this her a b, what will it become? Band. How is the child going to read? B, a, ba, band. तो वो साउंड एक साउंड से दूसरे साउंड में बहुत स्मूथली ग्लाइड कर रहा है. बैंड, बैंड. वो एक साथ में बोल पाएगा. दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव ब्लेंडिंग, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू टीच चिल्ड्रन रीडिंग. नहीं तो reading in the sense in the continuation of a sentence also. If I am writing a sentence, say for an example, if I write this simple sentence, the cat sat. If the child is reading, I'm removing cat because we have not taught the sight word yet. So I'm writing cat sat on a mat. So when I'm doing this, and if a child is reading at a cat, at a sat, on a at a mat, तो उसने पहले क्या पढ़ा वो भूल जाएगा. He will not be able to read the sentence fluently, or the child might read it like this: cat sat on a mat. And when I ask the child, yes, read it right. There is a difference between reading and comprehending. जो हमने पढ़ा है क्या हमें वो समझ आ रहा है या नहीं. There is a difference between the two. There are parents who come and tell me, मैम मेरा बच्चा रीड कर सकता है. Reading will only be approved जब वो रीड करके उस चीज को समझा सकता है, when the child is able to explain that further. So if he is reading cat sat on a mat and he's not able to explain this, but जब हम successive blending करते तो हम क्या कर रहे हैं, word को तो blend किया, साथ में sentence also. Cat sat on a mat. Cat sat on a mat. So when the child is reading this in this successive way, then the child is able to explain also. बैठी, नहीं तो वो बच्चे का रिदम ब्रेक हो जाता है. And the best way to get this doing is always use finger to read and gliding movement. The cat sat on a mat. Not like this. The cat sat on a mat. We do not lift our finger. We glide our finger through the sentence. The cat sat on a mat. So when you read in this, they are able to comprehend what they are reading also. The next phoneme manipulation हमने किया था कि एक sound हमने delete किया, add किया, letter change कर दिया. Phoneme substitution also we did. When we did this, I'll quickly show you one more time. D or G. भी अगर मैं ये D को हटा दूं और E लिख दूं, ये क्या बन जाएगा? E और G long. This is called phoneme substitution. मैंने sound को बदल दिया है. These all make reading very interesting for the future. Okay. Now, we spoke about VARK method, जिसमें 4 sensory modalities involved होती है. उसके अलावा इसको और enhance करने के लिए what we can do for reading and writing. So there are these methods that we can use. The first is tracing. We are all aware of this thing. He sat here and then we are writing the letters in it. Now what happens here is we can use anything. We can use rice, we can use salt, we can use sand or the colored sand as it is used here. Now not all children want to use their fingers. जो बहुत tactile sensitive होते हैं वो लोग चीजों को touch करना नहीं पसंद करते हैं.
Also, these are grainy. Smooth नहीं होते हैं. So in those cases, what do we do? Play-Doh. Play-Doh is also one way where they roll, they feel the softness, and then they make the letters. So you make a letter and you ask the child to replicate this. Tell me the letter and tell me the sound of this letter. Another way is mark making. So what you do is you spread the clay in a tray. You give the child any sharp object. Pencil is the safest. And without the lid, break the lid and give the pencil. And then ask them to write. This is called mark making. जब हम खेलते भी हैं तो हम एक mark बनाते हैं, right? So this is similar to that, mark making. Now for the children जिनको sensory issues है, जो नहीं touch करना चाहते हैं, use a paintbrush and let the child do it with the paintbrush, the dry paintbrush, and let them do it. Or they can use a pen or they can use a pencil. The effect will be same. Because अब उन जो बच्चे नहीं करना चाहते, वैसा तो नहीं कि हम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, उनको भी हमें पढ़ाना है. So we figure out, teach the way the child learns. Simple. जैसा बच्चा सीखेगा वैसे ही उसको सिखाना है हमें. And then sight words के लिए कुछ sight words के लिए rules होते हैं, कुछ patterns होते हैं, हम follow करते हैं. But there are few sight words जो हमें learn ही करने होते हैं. देखो और सीखो, इसीलिए उनका नाम ही sight word है. देखो और सीखो, sight words. So again, you can keep a word, a placard, and you ask them to trace or write in their notebook or anything of that sort. I personally feel that when we're doing the sight words, हमेशा हमें रेनबो राइटिंग करवानी चाहिए बच्चों को. Now, what is rainbow writing? What is rainbow writing? Using colors. With colors. And how do we do rainbow writing? Colors से तो होती है, लेकिन rainbow writing कैसे करेंगे? Rainbow में बहुत colors होते हैं, right? So the same letter we write over and over again with different colors. This works really well with individual sounds also and with words also. I always prefer a colored pencil over a normal pencil. It makes it very interesting for the child also. And वो जितनी बार ऐसे लिखेगा, so cat is a phonetically correct word. But if you talk about any sight word, उसके लिए it is a very effective way, and children really enjoys this. So try this next time in your class. Ask them to use color pencils. Maybe if you've introduced a sound, say आपने sound introduce किया S. Ask them. Write it on a big white chart paper. Give all the children crayons, if not pencil colors. Give them crayons. And ask them to trace that again on this. So at the end of the class, you will have a beautiful S. And then you stick it in the class. हम लोग बहुत सारे classroom resources बनाते हैं, right? Phonics is one way जहाँ पे आप बच्चों से resources बना सकते हैं while practicing and stick it in the class. And when you see children seeing what they have done, they learn really fast. PTM में आएंगे तो बोलेंगे मम्मा ये मेरी पेंटिंग है, मम्मा इसमें एक ये मैंने भी लिखा था, पापा देखो ये मैंने बनाया था. They feel the ownership of it, and when they feel that, they learn and they retain, and वो उनकी memory में retain होता है. Now this we do with a higher level. जो बच्चे class 5 में बच्चे जो 6 years के होते हैं senior KG में या class 1 में जो बच्चे होते हैं जिनको spelling के problems होते हैं, we do these spelling rules with them. So the sound of A-Y is also A, and the sound of A-I is also A. But how to differentiate? अभी प्रे में भी ए सुनाई दे रहा है और स्नेल में भी ए सुनाई दे रहा है हमें, तो हम ये बच्चों को कैसे सिखाते हैं? जब भी वर्ड के एंड में ए सुनाई दे तो हमेशा AY ए लिखना. स्टे, may, and always stretch. May, so ए,
में ए के बाद कोई और साउंड है? नहीं है। लास्ट में क्या सुनाई दिया? ए। सो वी विल राइट ए के बाद ए। जब ए वर्ड के बीच में सुनाई देगा, then we will write A-I-A. See, it is always in the middle of a word. Yes. So, A, क्या बीच में? A, There are exceptions also to the rules. English में बहुत सारे exceptions भी होते हैं हर rule के साथ में. तो A-I can also come at the beginning of a word also, like aid, like aim. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स में ये आगे भी आते हैं, बट बहुत कम है. बट मोर और लेस दिस रूल वर्क्स spelling confusion with regards to A-Y-A and A-I-A. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग रूल्स होते हैं जो हम ऐसे सीख सकते हैं फोनिक्स के थ्रू. दिस गोज इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ फोनिक्स जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, एंड देन दे आर गेटिंग इनटू राइटिंग. रीडिंग में दे विल रीड इट. When it comes to writing, तब जब spelling errors होते हैं, this is how we help the children कि ये spelling errors नहीं हो बच्चों के साथ में. With this, I have come to the end of this session. Now, I would want to take any questions if you have. Any doubt, any questions, anything that you want to? No doubt. No doubt. No doubts. जब कुछ भी क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आई अस्यूम टू थिंग्स. या तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि आप सब बहुत अच्छे से समझ गए हैं, या फिर कुछ नहीं आया और आपने कोई डाउट. Trained very well. थैंक यू, थैंक यू, Trained very well. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank you, ma'am. you. This is a little about me, and I have an Instagram channel where I keep posting about Okay. parenting, about career, and about phonics. So this is my channel, and you can follow this channel. You can put down my number in case of any question, any doubts, or anything similar. Take a screenshot. Just a minute, ma'am. Yes, sure, I'll do. You have to take a screenshot. Let me know once you've taken the screenshot. Yeah, ma'am. Yes, done. Okay, I am sharing a link chat box. I would request you to please drop a review for the session which we have conducted. Your feedback means a lot to us, and it helps us to improve our training sessions as well, and how you have been benefited by the same. I'm sharing it. And in the meantime, we can take any questions as well. Anything else you want to know about phonics, why it is important, how we can learn more about it. Progress. Sorry. Feedback करो sir. It is very good feedback. Type करो sir. Excellent. Very clear. Excellent. So I have shared Chat box. Chat box.
So I've shared a link in the chat box. You may click on the link, Approximately. copy it on a notepad if you've logged in from the laptop. Later, I request you all to please thank you, Tarunji. And later on, I request you to please give your feedback on this Google My Business page. It will be very helpful and grateful at the same time. So on that note, we'll sign out for the day. Thank you so much for being active participants. I hope I've been able to add more value to the phonics learning in your lives. And I hope you'll be able to further help children as well. Thank you so much. Yes, ma'am. Thanks to you all, though. Thank you, ma'am. Hopefully we'll. Thank you. I'm signing out.